Live. Good afternoon, everyone, and welcome to the excerpts from Expert and Expert Chat series today. And as promised, we are coming up with a media and entertainment industry today, and we will have an expert chat with a leading actor and someone who is making his impression in a different world altogether. And to chat with him, we will have Kavita Rai, who will be speaking to him and conversing with him on the media entertainment things. Now, Kavita is the convener for, uh, the National Career Counselors Network, and she is the one who is counseling psychologists and have been counseling many of the students. In today's episode, she is going to have a conversation with Mr. Sunny Rathod, who is an actor, and of course, he's having multiple portfolio. Kavita brings with her an experience of 8 years in corporate and then 10 years with the other, counseling thing. After her completing her MA in psychology, she would be interacting with Sunny on various challenges that we have as an actor. How can you enter into the acting field? What are the various channels to enter? What are the educational qualification that is required? What are the skill sets that are required? So, without much delaying between and coming between you and the famous actor and Miss Kavita, let me welcome Kavita right now, as so that she can take care of the entire episode with her question and answers with Mr. Sunny Rathore. So, I welcome Sunny Rathore as well as Kavita, and please start the session. Thank you, Sunanda, for setting Thank the. you. Thank you, Sundar. Sunny, is always pleasure to have you and interacting with you. Um, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही Same. एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. एज दिस इज व्हाट इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्या है? जिससे हम मास लोगों से बात करते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी मैगजीन, इट कैन बी न्यूज़पेपर, इट कैन बी सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट, इट कैन बी ये कहते हैं आपका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो इट इट हैज वाइडन अ लॉट. जस्ट जैसे से टेक्नोलॉजी आई है, दिस थिंग हैज वाइडन अप. द करियर अपॉर्चुनिटी हैज वाइडन अप एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. अब जैसे पहले बहुत लिमिटेड एंट्री होती थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रही है. अगर आप में पैशन है, एंथुजियाज्म है to get into media and entertainment, no one can stop you. This is the field for you. But to understand, ये एक बहुत बड़ा, आई वुड से एक बहुत बड़ा दरिया है जिसमें बहुत बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. उसको अगर हम थोड़ा कैटेगराइज करने की कोशिश करें, बिकॉज इतना वास्ट है कि हम एक दिन में उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, उसे समझ भी नहीं सकते हम लोग. So this is why we have broadly categorized into three. One is media and design art. Media and design art जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी टूल्स के जरिए आप कंट्रीब्यूट करते हो इस मीडिया में. यू कैन बी a graphic designer, animator, VFX designer. So these are the people, and there's a list of I would say job opportunity which exists. You can be publicity director, you can be fine artist, you can be visual creator. So these are the kind of jobs when you are combining media and design art in the media and entertainment industry. Then the second category is production and managerial art. Production and managerial art, when you are managing and organizing all the technical aspect, all other aspects, and putting them together to deliver a show, to deliver a magazine or a newspaper or an article, or a small YouTube series or anything. So what kind of job exists in this kind of role is production manager, stage manager. You can be costume designer, set designer, you can be publisher, you can be a camera operator, you can be producer, sound design editor. So these are few of the jobs which come under this particular category. Then the most glamorous and talked about is performing art category of it. Acting, where actually you are performing for the audience to reach and impact them.
And acting as an actor is one part of it. You can be an announcer, you can be radio jockey, you can be a television broadcaster, music editor, dancer, voiceover artist, you can be musician, film composer, stunt double. For the opportunities are limitless. What limits you is your passion, your drive. So you have to know what is best for me. So with that, I like to welcome Sunny, because we will be discussing with him कि acting में career क्या है, because he is an actor himself. And बहुत लोगों का फैशन होता है, बहुत लोग मतलब मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे कंगना रनौत या दीपिका पादुकोण की जैसे, like you idolize these people. If not in that, even in TVs have gone major shift now. In decades now, they have gone mega thing, and then advertising. So these are all many different aspects of it. We will discussing with Sunny. To introduce Sunny first, he is having experience of over 10 years in acting and modeling, and he is yes, actor. He is a actor for and doing a lot of small projects. He's been doing it, and but he is also co-founder of IBM group of companies. And as an actor, when we talked about him to come and speak to the students and inspire them and guide them, he mentioned the greatest challenge as an actor is fake casting agencies, fake events, nepotism, and what you can expect. हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी उसमें से आप सनी से क्या मतलब बताएंगे वो हमें, कि हम अपना एक्टिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिंग एंड मॉडलिंग. सो सनी, वेलकम टू एक्सपर्ट चैट. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टुडे. Thank you, Kavita. So, shall I start? Yes, firstly you have to tell me about yourself, how like you got into acting. Basically, I'm into acting and modeling since last 15 years, I must say. But after starting initial, struggling days, I left modeling and acting. And later on, I realized that I have wasted my time and money also, and entire efforts done by me. Then in 2010, I again thought about this, that I must start again. और फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, दोबारा कोशिश की, दोबारा ऑडिशंस दिए, और उसके बाद शायद अभी तक मैं कम से कम 30 से 40 टीवी एड्स कर चुका हूँ. और अभी एक हिंदी फीचर फिल्म भी की है, होपफुली वो रिलीज हो जाए क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है. तो मैं लगभग 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग में जाना है. कॉलेज टाइम से ही मुझे लगा कि मुझे लोग अप्रोच करते थे कि आपको मतलब मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए. तो उस टाइम मैंने कहीं से पैसे थोड़ा सा बोरो करके एक फैशन फोटोग्राफर से मैंने अपना पोलियो बनवाया था. बट पोलियो बनवाने के बाद होता वो ये जो इस इंडस्ट्री में होता है, वो लेके घूमना ही होता है. देन मैंने इसको गिव अप कर दिया था. हाँ, 2010 और 11 में मैंने दोबारा स्टार्ट किया. तो अभी मैं ठीक है, जितना मुझे काम चाहिए होता है मार्केट से मुझे मिल जाता है. That's wonderful. I think ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जॉब इज नॉट सिक्योर्ड. सो इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं. तो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल विद यू. इसके बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. मिसकंसेप्शन जो है एक्टिंग के बारे में, बच्चे जैसे अट्रैक्ट होते हैं या उनका थॉट पैटर्न होता है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन मेरा आपको ये है कि व्हाट इट टेक्स टू बी एक्टर. मतलब क्या होना चाहिए कि आप समझो कि मुझे एक्टिंग करनी है. मतलब ये नहीं कि मुझे शाहरुख को देख के लगा कि शाहरुख खान, मतलब मुझे एक्टिंग करनी है. देखिए, जो जनरेशन को लगता है, उनको ये लगता है कि लाइक इफ दे हैव सिक्स पैक्स एंड दे हैव गुड लुक, देन they can become an actor or model. And in fact that is totally wrong.
बिकॉज सिक्स पैक होने से कोई मॉडल नहीं होता और अच्छी शक्ल होने से कोई एक्टर नहीं होता। एक्टिंग की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं, क्योंकि सभी लोग एक्टर नहीं है, सभी लोग हीरो नहीं है। जो एक्टर है वो हीरो नहीं है, जो हीरो है वो एक्टर नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी लंबा सेशन है हमारा। तो बेसिकली हर एक काम को करने के लिए यू नीड अ डेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि if I look handsome then I can do acting, that's impossible actually। हमें लगता है एक्टिंग बड़ा आसान है, लेकिन गुड लुक्स होने से काम नहीं चलता है, डेडिकेशन हर काम में चाहिए होती है। तो एक्टिंग के लिए आपके एक्सप्रेशंस, आपका वोकल पे फोकस, आपका वोकल पे कमांड, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका लर्निंग और उसका याद करना, कितने लंबे डायलॉग्स, कितने बड़े बड़े डायलॉग्स आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एक ही फ्लो में हमें बोलना होता है। बिना कोशिश करता है डायरेक्टर की रीटेक ना हो, और एक्टर भी यही चाहता है कि रीटेक्स ना हो। तो बहुत सारी डेडिकेशंस हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वोकल पे होल्ड कितना है, आपका एक्सप्रेशंस, आपका लुक, आपका नेचर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, वो सब उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सनी, आपने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि यू नो लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। जब आप एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, आपको इतने ग्रेट लेजेंड्स लाइक नसरुद्दीन शाह, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू नो जॉनी लीवर, सो इट शाह है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो अभी चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत हैंडसम है, प्लीज डोंट माइंड नवाजुद्दीन भाई, ठीक है, बट उनकी एक्टिंग के तो क्या कहने, शायद अच्छे अच्छे एक्टर उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो सही लुक बात है। मैटर नहीं करते। आपको स्किल्स होनी चाहिए। एक तो आप बहुत क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए हाँ, आपको। आप स्पीकिंग, आप सॉरी, जैसे कह रहे हैं कि लेट मी समराइज दैट, विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सनी। देन जो आपने मुझे कहा, तो इफ आई पुट इट दैट इन, उसे मैं नटशेल में शॉर्ट में करूं, तो इट इज लाइक क्रिएटिविटी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिटरेसी, आप जिस भाषा में एक्टिंग करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपका भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपकी रीडिंग स्किल्स, जैसे सनी ने बोला है, पढ़ने की आदत आपको होनी चाहिए, बिकॉज बड़े बड़े डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं। मेमोराइजेशन, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए। एक आपने कहा जैसे सिक्स पैक, फिजिकल स्टेमिना बहुत जरूरी है। सिक्स पैक्स जरूरी नहीं है, बट फिजिकल स्टेमिना, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आपको परसिस्टेंट होना है, क्योंकि आपको बहुत रिजेक्शन और फेलियर मिलेंगे। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड आपको लोगों से मिलना भी बहुत अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू, इस इंडस्ट्री में लोगों से मिलना, लोगों से कनेक्शन बनाना, नेटवर्किंग करना इज सो इम्पोर्टेंट। So with that, I come to the next question. Sunny, आपके पास मेरा next question क्या है? We forgot one point to be highlighted, that expressions। Okay, yes. मैं जो एज एन एक्टर सामने की ऑडियंस को कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी एक्टिंग से, अपने एक्सप्रेशन से वो कह पाई हूँ या कह पाया हूँ? हाँ, that is very important, because ultimately आपको impact करना है ऑडियंस को। तो अगर आपको हंसाना है तो आप आपको आपकी एक्टिंग से वो हंसने चाहिए। अगर आपको रुलाना है तो रुलाना, मतलब you should be able to transfer that energy। Yep. With that, we come to the next। देखिए, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं अब, ठीक है, इस मीडिया वर्ल्ड में, एंटरटेनमेंट में। तो एज एन एक्टर, ये पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन से हैं, मतलब फॉर एक्टर? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक्टर का ना कोई जॉब प्रोफाइल फिक्स नहीं होता। अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको रेडी रहना होता है। आपको नेगेटिव रोल्स भी करने पड़ सकते हैं, आपको पॉजिटिव रोल्स भी करने पड़ सकते हैं। आप उसी फिल्म में एक क्रिमिनल भी दिखाए जा सकते हैं, आपको लाफ्टर पंचेस भी देने होते हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई इसमें कोई प्रोफाइल फिक्स नहीं है एक एक्टर का। हाँ, एक्टर की परिभाषा ही अलग अलग है कि एक थिएटर आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक बेसिक आर्टिस्ट और एक हीरो, ये चार डेफिनेशंस हैं, जो कि अगर मैं एक तो एग्जांपल्स दूंगा तो शायद जो ऑडियंस है उनको समझ में आ जाएगा मेरा इतना बोलते ही। लेट्स से एन एग्जांपल, सलमान खान।
तो जो लुक्स हैं वहाँ मैटर करते हैं, क्योंकि वो खुद में ही उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो कि उनको एक अलग कैटेगरी में, एक हीरो की कैटेगरी में लाके खड़ा करता है। वहीं एक एक्टर जो कि लुक्स बेशक ना हो, लेकिन जो स्टोरी है वो खुद को उसमें ऐसे ढाल लेता है कि किसी भी स्टोरी में, किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को फिट कर लेता है और उस हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, लोगों को दिखा पाता है कि हाँ, अगर मैंने एक क्रिकेटर का रोल किया है तो वो मुझ पे सूट कर रहा है, मैं ही क्रिकेटर हूँ, वो अंदर एक फीलिंग दे देता है कि हाँ यही है जो कुछ है। तो आई उसमें थिंक कोई दैट एक जो इज, प्रोफाइल फिक्स नहीं होता, प्रोफाइल नहीं है उसमें कोई ये एक्टर बहुत का। इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। देखिए हीरो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत मूवीज में हीरो रहे हैं, तो वी कैन मतलब अगर हम लोग सोचें तो एज अ फिल्म एक्टर हम लोग उन सबको एक क्या कहते हैं, सिनेमा कह लीजिए, सिनेमा वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस में हम देखने जाते हैं या थिएटर में देखने जाते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि टीवी एक्टर्स एक अनदर कैटेगरी है, डेली सोप्स और जो होते हैं, और आपने थिएटर का कहा, थिएटर इज लाइक स्टेज एक्टर्स जो होते हैं। स्टेज एक्टर्स हो गए। हाँ, और इनिशियली बहुत, जैसे आपने बोला, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत वो करना पड़ता है। एक एक्स्ट्रास का एक रोल है, बिकॉज जब तक आपको लीड रोल नहीं मिल रहा है, आपको अपनी खर्चा पानी तो चलाना है, तो वो भी करना पड़ सकता है। एक वॉइस ओवर एक्टर भी आजकल बहुत चला है सनी। एक्चुअली बेसिकली वॉइस ओवर एक परफॉर्मेंस है, उसको हम एक्टिंग की लैंग्वेज में, उसको हम एक्टर नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बात की बेसिक टचिंग्स हो जाती है। तो अगर मैं प्रोफाइल की बात करूंगी, एक्टर की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, तो एक्टर का प्रोफाइल सिर्फ एक्टिंग ही है, और एक एक्टर एक्टर ही होता है। हाँ, वो अपने आप को थिएटर पे अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो थिएटर आर्टिस्ट है। अगर वही एक्टर परफॉर्म कर रहा है टीवी एड्स में, तो एक टीवी एड का आर्टिस्ट है, टीवी एड एक्टर है। अगर दैट वो इज एक्टर, वो एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में आ गया, एडवर्टाइजिंग एंड मॉडलिंग में चले गया वो। हाँ, अगर टीवी सीरियल में है तो ऑब्वियसली वो टीवी सीरियल एक्टर हो गया। अगर वही एक्टर फिल्मों में आ गया तो फिल्म एक्टर हो गया। यही उसकी डेफिनेशन को अलग अलग करता है कि एक्टर की प्रोफाइल से है। जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, जो अपने असिस्टेंट को मतलब आप जो असिस्टेंट डायरेक्शन बोल सकते हैं, या दूसरी जो चीजें हैं, ये बैकयार्ड में आती हैं, ये सपोर्टिंग्स होती हैं, और ये ऑब्वियसली बिना इनके कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो हर एक वो एक्टिंग के उसमें नहीं आते, लेकिन हाँ सपोर्टिव रहते हैं हमेशा एक्टिंग के अंदर, कि इनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। हाँ जी, बट सनी एक जैसे टेक्नोलॉजी इतना रोल प्ले कर रही है और बहुत सारे एनिमेशंस आते हैं, उसमें भी देखिए इवन वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करते हैं, एक्टर्स काम करते हैं, बिकॉज दे आर कॉल्ड एक्टर टू माय अंडरस्टैंडिंग इज, क्योंकि उन्हें वो इमोशंस डालने होते हैं अपने डायलॉग पे। आप कहते हैं ना, एक्सप्रेस करना है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली वो स्टिल वो एक्टिंग में नहीं आते। एक्टिंग होता है लाइव, लाइव आना। आप टीवी पे आप फ्रेम में आ रहे हैं, फ्रेम में आप दिखाई दे रहे हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट फ्रेम में नहीं आता है। सामने मोशंस होते हैं, सामने कार्टून्स भी होते हैं, सामने चीजें चल रही होती है, लेकिन पीछे से वो सपोर्ट में उनका वॉइस चलता है। हाँ, वो अपने आप अपने इमोशंस को उसके अंदर डालते हैं, लेकिन वो एक्टिंग में नहीं आता है। ओके, यू आर द वेटरन, सो आई टेक योर वर्ड्स। अब वही है कि जो एक्सपर्ट है, तभी हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। अब जी। मुझे एक बात और बताइए कि हाउ यूट्यूब, वेब सीरीज एंड फेसबुक हैव एक बहुत बड़ा लैंडस्केप दे दिया उन्होंने एक्टर्स को। इफ यू कैन प्लीज गाइड ऑन दैट, हाउ समवन लुकिंग फॉर बीइंग एन एक्टर, और उसे डायरेक्ट अगर वो नहीं मिल रहा है, तो हाउ दे कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली हिंदी सिनेमा हैज अ वास्ट रेंज। तो बीइंग एन एक्टर, सभी लोगों को टीवी तक पहुंचने का चांस नहीं मिल पाता है। एक 55 इंची के टीवी तक पहुंचना, या फिर एक 32 mm या बड़ी स्क्रीन तक पहुंच पाना, वो पॉसिबल नहीं है सभी एक्टर्स के लिए। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अपना, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है लाइक यूट्यूब, विमियो एंड ऑल, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ना आपके ऊपर कोई बाउंडेशन है कि कोई आपको डायरेक्ट करने जा रहा है, ना यहाँ पे ये बाउंडेशन है कि आपकी फिल्म रिलीज होगी नहीं होगी, या आपका ऐड चलेगा नहीं चलेगा, या कोई आपको देखेगा नहीं देखेगा। ऑब्वियसली आपके अंदर का हुनर है, आप खुद से डायरेक्टर हैं, खुद से एक्टर हैं, और ये प्लेटफॉर्म ओपन है, इसमें कोई टिकट्स नहीं लगती हैं।
सामने वाले को देखने के लिए, या सामने, या आप अगर एक प्रोड्यूसर है तो आपके पास रिस्क कम है यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटली आजकल, यूट्यूब की बात करूँ तो ऑब्वियसली इफ यू आर एन एक्टर और अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो एक अच्छी स्टोरी आप डेवलप करें, उस पर मेहनत करें, उस पर रिहर्सल करें, देन उसके बाद आप एक स्टोरी में उसको कन्वर्ट करें, अपने आप को अपने कैरेक्टर के अंदर लेके आए। और ऑब्वियसली अगर कोई डायरेक्टर है आपको सपोर्ट करने के लिए तो उनसे ही आप डायरेक्ट करवाएं। अदरवाइज अपनी छोटी छोटी फिल्में लेकर आप उन प्लेटफॉर्म्स पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सो दैट जो व्यूअरशिप है आपकी वो बढ़ेगी उससे, और अप्रिशिएट करने वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे, और ऑब्वियसली जो डेप्रिशिएट करना चाहेंगे वो वैसे भी करेंगे, तो उससे टेंशन नहीं लेते। तो आप लोग इसमें ट्राई कर, मतलब एक अच्छा स्कोप है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कि जिनको बड़े पर्दे पे आने का मौका नहीं मिल पाता, या जो सोचते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, या जिन्होंने कोशिश की जो नहीं पहुंच पाए, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अर्निंग का सोर्स भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आपने बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं जो अभी मेरे दूसरे क्वेश्चन में आने वाले हैं, क्योंकि एक्टिंग को लेके ना बहुत सारे मिथ्स कह लो या मिसकंसेप्शन कह लो या बहुत अच्छी खुशफहमियां भी हैं, बहुत ज्यादा मैं कहूँगी। तो एज एन एक्टर मैं आपको चाहूंगी आप उसके बारे में अपनी राय दो कि पहले तो बोला है एक्टिंग में बहुत पैसा है, दे मेक लॉट ऑफ मनी, सो पीपल आर कि पढ़ाई नहीं करना, हमें वहीं जाना है। पैसा कितना है ये बताओ पहले। देखिए मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि ऑब्वियसली जब हम एक जनरेशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वेबिनार जो हम कर रहे हैं, और एक अवेयरनेस जरूर हमें बतानी चाहिए, लोगों के अंदर स्प्रेड करनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ताकि वो लोग मिसगाइड ना हो। और ऑब्वियसली जब एक बच्चा मिसगाइड होता है तो सबसे ज्यादा सफर उसकी फैमिली को करना पड़ता है। तो इस लाइन में लोग फ्री में भी काम करते हैं, लोग 500 रुपीज में भी काम करते हैं पर डे पे, एंड लोग 5 करोड़ रुपए पर डे पे भी काम करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू जो है मार्केट में, आपकी फी वैल्यू, आपका फेस वैल्यू, आपका एक्टिंग का जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 20-25 हजार एक दिन का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एकदम से नहीं आता है। आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है, अपना बेस एक स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 2006 में पोलियो बनवाया था, और लेकिन मैंने एक्सपीरियंस बोला कि मुझे 10 साल का है, क्योंकि मैंने बीच के 5 साल जो मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो हर एक आदमी शुरू से बड़ा नहीं होता, तो इसमें पैसा है, बहुत है। आप डेली सोप्स देखते हैं, डेली सोप्स का मैं एग्जांपल लूं तो उसमें आपको जो मेन कैरेक्टर्स हैं, कोई 2.5 लाख रुपए पर डे पे भी है, पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 5 लाख रुपए पर डे पे भी है, और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो 10 लाख रुपए पर डे पे भी होते हैं। उसी में जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कोई 20,000 पर डे पे है, कोई 10,000 पर डे पे है, कोई 50,000 पर डे पे है। डिपेंड्स कि आपका कैरेक्टर क्या है, उस शो की टीआरपी क्या है, प्रोड्यूसर का बजट क्या है। हम सावधान इंडिया देखते हैं, उसका बजट कुछ और है, उसमें जो नॉन आर्टिस्ट होंगे वो 20-50 लाख तक जाते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे आप आर्टिस्ट देखते हैं, जिसको कि लेट सपोज कि जिसको हवलदार दिखाना था, छोटा सा एक कैरेक्टर था, वो मुश्किल से 1,000 रुपए कमाता है, लेकिन वहीं पे जो इंस्पेक्टर का रोल कर रहा है वो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक ले जाता है। तो am I audible? Yes, you are audible. हाँ, स्क्रीन गॉन लॉस्ट। तो डिपेंड करता है कि हाँ मनी है, लेकिन स्टार्टिंग में अर्निंग के लिए आपको थोड़ा सा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, अभी बिग बॉस का शो स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि सलमान खान सर जो है वो 8 करोड़ रुपए पर एपिसोड ले रहे हैं। That's a great amount. So, सनी, जब तक कविता लाइन पे दोबारा से जुड़ रही है हमारे साथ, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। वो ये कि अब आपने एक्टिंग के बारे में इतनी बातें कही कि भाई लोगों का अर्निंग पोटेंशियल ये है, इस ढंग से वो लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक जो बेसिक जो चीज हम जहां से शुरू करना चाहते हैं वो ये कि
क्या एक्टिंग के प्रोफेशन में, जैसे आपने बोला स्ट्रगल है, लोग हैं, जैसे आपने पोर्टफोलियो बनवाया, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने के बाद थोड़ा सा मतलब नकारात्मक सिचुएशंस ऐसे आए होंगे, या मतलब मौके नहीं मिले होंगे, या मौके वैसे मिल रहे होंगे जो आपको नहीं चाहिए होंगे, ठीक है? तो वहां उस सिचुएशन में, क्योंकि यूथ इज गोइंग टू वॉच अस, यूथ इज वॉचिंग अस एंड दे वुड लाइक टू स्टार्ट देयर करियर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो आप क्या उनको सजेस्ट करोगे? Suggestion for what? For starting into acting? Yeah, to starting into this profession. Okay. So basically पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया है, लेकिन अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और सीरियसली उसको एक एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग कोई थिएटर ज्वाइन करें, थिएटर में जाके कुछ क्लासेस लें। उसके एक्टिंग के कुछ बेसिक्स होते हैं जिसमें आपके वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस होते हैं हिंदी के, उसमें कुछ उर्दू टच होती है हमारी, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सीखने होते हैं। बाकी हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपको वो प्ले वगैरह करवाते हैं। जैसे मान लीजिए सर्दियों का ही मौसम है, लेकिन वो अगर वो आपको बोलेंगे कि आप फील करो आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो वो सब बेसिक जो चीज़ें हैं एक्टिंग की वहाँ सिखाई जाती हैं। आप डिप्लोमा भी इसमें कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स भी इसमें अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे स्टूडियोज, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैं एक ही नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, बाकी तो सबकी प्रमोशन हो जाएगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई थिंक एशियाज नंबर 1 ड्रामा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है। हाँ, वहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा टफ है क्योंकि नंबर 1 है और सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो वहाँ पे भी कुछ उनके कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट क्लासेस भी चलती हैं जिसमें आप थिएटर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। एक बड़े ही नॉन थिएटर हमारे जो टीचर हैं जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस को सिखाया, अस्मिता थिएटर है, अरविंद गौर सर हैं जो कि ये सब सिखाते हैं। तो अगर आप इस करियर को प्रोफेशन ही इस लाइन को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं सीरियसली, तो आपके पास थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज बिना सीखे, बिना कुछ समझे तो लाखों लोग मुंबई जाते हैं और लाखों लोग वापस आते हैं, क्योंकि उनमें से सिर्फ 1 या 2 को ही चांस मिल पाता है। बाकी सब तो जो छोटा मोटा कोई काम करके या तो वहीं कोशिश करते हैं या वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि इसमें आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ से आप कर सकते हैं। बेसिकली आप रेगुलर कोर्सेज कर सकते हैं, तो आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा, आप कुछ कोर्सेज करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए और फिर आप चांसेस लीजिए, उसमें ट्राई करिए। अच्छा स्कोप है एक्टिंग में। स्टिल मैं यही बोलूंगा कि अपना बेस आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थैंक यू सनी। एक और बहुत खुशफहमी है बच्चों को कि मतलब पढ़ाई में मार्क्स नहीं आते, वो कहते हैं हमें तो एक्टिंग करनी है तो हमें मार्क्स क्यों चाहिए। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि उनको क्या होता है कि खुशफहमी है कि एक्टिंग इज अबाउट ग्लैमर थिंग, ग्लैमर है, अटेंशन है, फोकस है सब में, एंड हार्ड वर्क इज नॉट नीडेड, पढ़ाई करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि मार्क्स लाना ना लाना उससे एक्टिंग का कोई मतलब नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई ज़रूर पूरी करनी चाहिए जब तक कि हम किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के घर में पैदा ना हुए हो, जो कि आपको पता ही होगा आजकल बड़ा नेपोटिज्म चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सच है। तो अगर हम ऐसे किसी खानदान में किसी घर में पैदा नहीं हुए तो ठीक है, हमारा पढ़ाई वहाँ से कवर हो जाएगा क्योंकि हमें वो लॉन्च करके ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मार्क्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सभी के लिए नहीं बनी है, ऐसा सबको लगता है, गलतफहमी है, उसको आप निकाल दीजिए। मैंने कहा लाखों लोग जाते हैं मुंबई हर महीने और लाखों लोग ही वापस आते हैं। तो मैंने इसमें ये नहीं कहा कि ये 99,999 वापस आते हैं, मैंने कहा लाखों लोग ही वापस आते हैं। मुश्किल से 0.5% या 1% लोगों को यहाँ पे चांस मिलता है काम करने का, और जो कि थोड़ा बहुत सेटल हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हैं आगे, तो वो वहाँ पे उनको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, मार्क्स लाना बहुत जरूरी है,
अगर आपके पास आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो आप वहाँ पे किस तरह के आप कैरेक्टर करना चाहेंगे? अगर आपकी कॉम स्किल्स अच्छे नहीं है या पढ़ नहीं पाए हैं, 10th ही है, 12th ही है, इसके बाद आप पढ़े नहीं क्योंकि आपको एक्टिंग में जाना था, तो वहाँ वो आपको जो काम मिलेगा ना वो भी उसी हिसाब से मिलना स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में, अगर मिलेगा तो। लोग आपको कंसिडर नहीं करते हैं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आजकल तो ग्रेजुएशन तो नॉर्मली होगी, तो सबको मास्टर्स